Hey guys, how are you doing? Hope you're doing your best. My name is Mati, your coach from Suda's Knowledge is present here with the chapter crop production again with the part 4. Let's start without any delay. Again, welcome to Smoothest Knowledge. Now, today we will learn crop rotation. What is crop rotation? Crop rotation is the method to uh, means in the method in which the soil regain the nutrients, replenish the soil with nutrients. So if the same crop is grown in a field year after year, बहुत दिन तक बहुत वर्ष तक यदि वही सेम क्रॉप एक ही फील्ड में लगाया जाता है तो द फर्टिलिटी of the soil goes on decreasing. फर्टिलिटी उस सॉइल का डिक्रीज होने जाता है मीन्स डिक्रीज हो जाता है और कम कम होते जाता है. दिस इज बिकॉज द सॉइल बिकम्स पोर इन न्यूट्रिएंट्स. बिकॉज ऑफ दिस रीजन द सॉइल बिकम्स पोर इन न्यूट्रिएंट्स एंड the plants are not able to grow well. If different crops with the different nutrients requirements are grown in different seasons, यदि different seasons में requirement के अनुसार different crops with the different nutrients use किया जाएगा, grown किया जाएगा, the fertility of soil is not affected. Means the fertility of soil will be there. For example, wheat or rice crops. They are the crops that use the large amount of nitrogen. And we also have to regain the nitrogen in the soil. So, after the cultivation of wheat or rice, we have to plant some pulses. We should have to plant some pulses to fix the atmospheric nitrogen again. Such a crop that can grow in a nitrogen deficit at the same time the soil is replenished with the usable nutrient because of its ability to fix atmospheric nitrogen. For example, pea, bean, soya bean, groundnut are such crops. Now, जैसे कि मैं आप लोगों को बोली थी to regain the nutrients in the soil, that the process of growing different crops in different seasons, different crops grow करना है यदि different season में in rotation, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये वैसे करना है, and that the soil will be not the nutrients in the soil will not be depleted or affected. That is known as rotation, crop rotation. आया समझ में? Now, leguminous crops are used in crop rotation. Leguminous crops जो होते हैं वो ही यूज होते हैं crop rotation में. Why? Because these are able to fix the atmospheric nitrogen. The roots of the leguminous crops have some knots, and these knots are nitrogen fixing knots. This process is called nitrogen fixation. We will learn in the next chapter. Now, do you know? What do you know? Do you know nodules are found in the roots of leguminous plants?
नूडल्स कैसे बने होते हैं? नूडल्स जो हम लोग खाते नहीं, वो और कुछ है। तो नूडल्स जो होते हैं वो हम लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में बने होते हैं। रिजोबिया वो क्या है, बैक्टीरियाज है जो कि रूट नूडल्स में होते हैं और वही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आप सोच रहे हो नूडल्स? नो गाइस, द नूडल्स दैट वी डोंट ईट, the noodles are the root noodles that present in the plant of the leguminous plants. Now we will learn about the irrigation. अब irrigation के बारे में पढ़ेंगे। irrigation भी एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। तो irrigation क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। इरिगेशन का मतलब होता है कि क्रॉप्स जो हमारे फील्ड्स में है उनको वाटर सप्लाई करना। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप्स। व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप्स? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, एक तो सीड्स के जर्मिनेशन के लिए, जो कि वाटर के बिना तो होता ही नहीं है, और एक है रूट्स फेल टू डेवलप एंड एलोगिनेट इन ड्राई सॉइल, और रूट्स जो होते हैं वो ड्राई सॉइल में अच्छे से जी नहीं पाते। और कुछ है, देखते हैं और कुछ है। Nutrients cannot move up from the soil in the absence of water. वाटर यदि नहीं होगा तो सॉइल से प्लांट तक ऊपर नहीं जा पाएगा न्यूट्रिएंट्स, यदि वाटर नहीं होगा। It protects the plants from frost. फ्रॉस्ट से या तो हॉट एयर करंट से वाटर प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। That's the common example, right? Now we know that water is essential for everything, right? Everything, for proper growth, for development of crops, for our human body. Now water is absorbed by plants from soil through the root system. And water have some minerals. Along the water, the roots of the plants also absorb the minerals. Now the time and frequency of irrigation vary with crops and the soil, the quality of soil and the seasons. यदि वीट और इरिगेशन किया जाएगा, मीन्स वीट लगाया गया है और उसका इरिगेशन किया जाएगा, तो डिफरेंट स्टेजेस में प्लांट ग्रोथ का डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। वैसे ही राइस के केस में ज़्यादातर वाटर ज़्यादा दिया जाता है। अब देखते हैं, टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट इन विंटर। फ्रॉस्ट जो हो जाता है विंटर में प्लांट्स में, तो उसको मीन्स प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स अपने फील्ड्स में वाटरिंग करते हैं, राइट? एंड स्पेशली एट नाइट में ज़्यादातर, बिकॉज द वाटर इन द फील्ड्स फ्रीजेस in the night especially, and from the first, if there will be frost, the plant may die. Now what are the sources of irrigation? irrigation के sources क्या हैं? तो sources of water क्या है? ओके, मैं आपको दूंगी एक होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर लिख कर देना है। बहुत इजी सा है। आप लोग क्लास 1 या तो क्लास 2 से भी पढ़ते आ रहे हो। व्हाट आर दिस सोर्सेस? आई विल टेल नाउ। व्हाट आर दिस सोर्सेस ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन के अभी सोर्सेस क्या हैं? तो यू नो दैट फील्ड्स आर इरिगेटेड विथ वाटर। तो
इरिगेशन का मतलब क्या है, वाटर से ही इरिगेट होता, मीन्स इरिगेशन होगा। तो वो वाटर कहाँ से आता है, एक तो पॉन्ड से आता है, और एक तो लेक से आता है, और एक तो हमारे कैनल से आता है, और एक तो हमारा वेल्स से आता है, और एक तो हमारे ट्यूबवेल से आता है, रिवर से आता है, डैम से भी आता है। तो वाटर के बहुत सारे सोर्सेस हैं। नाउ वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड्स। कैसे किया जाता है फील्ड्स में वाटर सप्लाई? देयर आर डिफरेंट मेथड्स। द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर, इन दिस मेथड्स, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में, इस मेथड में क्या किया जाता है ना, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड। कैटल आप लोग जानते हो, काउ, बुल, इस जो ये जो है, और ह्यूमन लेबर, ह्यूमन काम करते हैं। तो ये तो ज़्यादा चीपर होता है, ज़्यादा एफिशिएंट, लेकिन एफिशिएंट नहीं होता। यदि आप लोग मशीन से यूज़ करेंगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव आएगा, लेकिन एफिशिएंट ज़रूर होगा। तो डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स है, मोड, चेन पंप, रहत, डेकली। लेट्स सी द पिक्चर्स. You can see the pictures right now. This process is known as moat. This is the chain pump. This is the dhekli. This is the rahat. आया समझ में कैसे इरिगेशन किया जाता है? 4 प्रोसेस है, और एक तो हमारा मॉडर्न प्रोसेसेस भी है। यस, तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो है वो हमारे 2 टाइप्स में, एक तो हमारा है ट्रेडिशनल मेथड्स, और एक तो है हमारा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग देख लिए। ट्रेडिशनल मेथड में जाता है मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत। अब मॉडर्न मेथड्स में क्या जाता है? मॉडर्न मेथड्स तो हमारे 2 आ गए हैं। एक है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर का मतलब एक पाइप जैसा होगा, उससे स्प्रिंकल होकर वाटर आता होगा, और वो यस आप लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊंगी एक शॉर्ट्स में आप लोगों को मैं दोनों पिक्चर दिखाऊंगी, सिर्फ 2 पिक्चर का एक शॉर्ट्स बनाऊंगी। इस वीडियो के बाद अपलोड होगा, डोंट बी वरी। और एक होता है ड्रिप सिस्टम, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ड्रिप सिस्टम क्या होता है। अब मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर क्या होता है? तो स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइप गए होंगे, पाइप से ऐसे स्प्रिंकल होकर आता होगा। और ड्रिप सिस्टम का मतलब वाटर फॉल्स बाय ड्रॉप इन द पोजीशन ऑफ रूट्स। सो इकोनॉमिकली मेथड मीन्स वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है, और मैं आप लोगों को बोली थी कि एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, ज़रूर से लिखना मत भूलिएगा। सोर्सेस ऑफ वाटर, जो कि इस क्लास में मैं पढ़ाई हूँ। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। So if you were waiting for to see the pictures of sprinkler system and the drip system of irrigation, don't forget to subscribe the channel for the next videos. Like the video to give me motivation. Share with your friends and families. Now keep allowing the bell icon system to get all the notifications, because you are going to get all the notifications. You will be succeed ahead because of this. Thank you and have a nice day. Don't forget to watch the shorts after this.